taken the first step, and this you be part of any college, you will at the end of the day you will be talking about them. So I'll talk about LBS because LBS has given me everything. So you have taken the first step. Congratulations. MBA is a race, and in this race, whoever runs fast, whoever runs smart, whoever runs continuously will survive. Anyone who feels that no, this is not my place, or I'm not comfortable, or you're not in the right company, or you are basically feeling that there is something missing, that is where you lose the race. So you have to adapt to the situation and move ahead. Where are you and what is at stake? So corporate is huge. It can accommodate n number of people every year. Are we good enough for that? Is the question you should ask. You have to decide today whether you want to continue. You have to decide whether you want to continue in a pharma field, whether you want to continue in agri field, you want to continue in finance, marketing, or what kind of field you want to continue. That's a decision which you have to take today. That is the only decision I feel which you have to take today. Down the line, it will change. What will happen is you will get enough opportunities here so that you will know these are my priorities, this is what I wanted, and this is where I am moving. So, as I speak to you, a very simple thing what MBA is. We are part of the puzzle. Simple as that. You will find people who are engineers, they are doing their job. You will find people who are accountants, they do their job. You will find n number of people who are into their particular job. But we are the links. We are the link who has a holistic knowledge. Who has a holistic knowledge of the business. You decide agriculture, we have a holistic knowledge. You decide real estate, we have a holistic knowledge. Why I say holistic knowledge? Because at the end of year, end of 2 years, what we will be doing is we will know HR, we will know finance, we will know supply chain, we will know a lot of things. So basically, we are basically the missing pieces in this jigsaw puzzle, and we should be proud of it because without us, this puzzle is incomplete. So अभी बोल तो दिया है बस without us the puzzle is incomplete. But we should be that piece which fits there, and we have to prepare ourselves in a way that we fit. Okay. Presentation में 2 स्लाइड है, ये पहली खत्म हो गई. आगे की स्लाइड में 4-5 पॉइंट्स है, ज्यादा नहीं है. Don't stress, easy. So what is to be done in next 5 years? अभी मैं importance दूंगा 5 साल का. 5 साल को अपने को इम्पोर्टेंस क्यों देना है? 2 साल आपका एमबीए का, 3 साल आपका फर्स्ट कॉर्पोरेट लाइफ का. ये जो 5 साल है, ये आपके अगले 30-35 इयर्स डिफाइन करेगा. आज आप 22-23 इयर्स ओल्ड के हो. You will be 28 by end of 5 years, and then from there 30 years is around 60 years. That is your whole corporate life. So what you do in next 5 years is going to define your whole life. And you would be feeling, अरे boss 5 साल में करना है, ये करना है, वो करना है. You have to take very small steps and build your life. So in next 5 years, what you have to do is basically work 24/7. Remain available 24/7. अपना दिमाग कभी भी 24 घंटे बंद नहीं, मतलब 1 मिनट भी बंद होना नहीं चाहिए. I have seen a lot of people, अरे आज संडे है, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, I don't want to do anything, I don't want to study. As an MBA student, you don't have that liberty. You will have to work for next 5 years 24/7. But that is where you will be set apart. आज इंजीनियर का सैलरी एक लेवल पे जाते it takes time to. Then there are doctors की सैलरी के ऊपर अपन बात नहीं कर सकते because कोविड आ गया तो छाप. But then there are other engineers हो गए, accountants हो गए. हर चीज का है ना एक प्लेटो आता है. MBA का वैसा नहीं. आप जितना अपने आप को शार्प रखोगे, आप जितना अपने आप को स्किल्ड रखोगे, आप जितना अपने आप को इवॉल्व करते रहोगे डाउन द लाइन,
उतना आपका, so at the end of the day money is money, so I am talking in those terms. तो आपका जो evolve होगा, that is what will, you know, that is where MBA is set up. I started with an organization called HDI, Housing Development and Infrastructure Limited. As company, when I was working, it was a 10,000 crore company. Today it is in shambles because of various reasons. That kept aside, the first job what I did was very simple. My immediate boss was a director in the company. He used to make expenses. उसपे कुछ खर्चे रहते थे, आज मैं खाना खाने गया, गाड़ी का पेट्रोल का पैसा, वो मेरे को वो मैनेज करना है. In 6 months, he realized that this kid has a potential, and he gave me a portfolio of 600 crores, that portfolio, which no one in the company was handling. In next 1 year, that 600 crore was built to 2100 crores. I further raised 1500 crore rupees through banking, and that to few banks itself. So it was basically the kind of work I did. So basically, काम छोटा नहीं है, तुमको लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलाना होता है, and that is what I achieved, and that is where the 24 hours, 24/7 theory comes into picture. There was a banking team in my college, in my organization. A lot of times, sir, it's 5 we are going, but my boss realized that इसको रात को सुबह 5 बजे बोलो, रात को 12 बजे बोलो, this guy is available. So let's give him some work, and that is where I survived. That is where you will survive as an MBA student. Next. So we'll have to be on 24/7, ready 24/7. The next thing is small milestone. अभी आप लोग यहाँ पे रहोगे, सर है, मैं सर के सामने बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को पहला इंटरव्यू होगा, आपको पूछेंगे what is your plan for next 5 years, and you will say I want to become a CEO in a company. ये सब MBA कॉलेज में पढ़ाया जाता है, IIT में भी, IIMs में भी यही पढ़ाया जाता है, and the best of the best में क्या है, once you get into corporate ना, these all answers become silly to us. What is your milestone? तो अपना milestone है भाई हम 5 साल में कोई कंपनी का CEO, CFO, managing director वगैरह वगैरह बनेंगे. It is not true. What is going to happen in next 5 years is basically you will have to set aside small milestones. आपके लिए milestone करना बहुत easy है because you have semesters, first semester, second semester, first year, second year, आप ये सब चीजें कर सकते हो. Every semester अभी मेरे milestone क्या थे? So मेरे milestone ऐसे थे कि हर semester में मैं एक project करूँगा. So my first semester year in this college, I did a project. I took up at least 30 real estate projects around this locality. I did a survey of what kind of building people are doing, what kind of amenities, what kind of area, at what rate they are selling. I created a book, and I went to at least 6 to 7 developers across Pune, telling them, sir, I have did this research and I want your acceptance too. I didn't ask for any monetary help. I didn't ask for, that I need your acknowledgement, I need your certification, nothing. I just told them that I want you to tell me whether it's right or wrong. And they were happy. They said that this area, that time this area where you are right now, this was the only building. आजू-बाजू में there was no development. Opposite side में एक building बन रही थी, इधर एक आध दो छोटी-छोटी buildings थी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं थी. This was all empty. अपना Burger King के आगे आपको कुछ नहीं मिलता. This is what all has happened in last 7 years in this locality. So the developers found it very apt, very correct, and they offered me internship with them. Because first year था, हमको internship नहीं मिलती थी, तो ठीक है, मैं बोला when there is internship after a year, I'll join you guys. तो ये हुआ मेरे साथ first semester. Second semester में मैंने banking के ऊपर एक project. Third semester में मेरे साथ juniors आए, and मैंने जो first semester का project था, मेरे को बोला गया कि आप वो वापस replicate. I did that. So these were the small milestone I did. At the same time, ये milestone के अलावा curriculum चलता था. We were here, we were giving presentation. हफ्ते में कम से कम 2 से 3 एक्टिविटी होती थी, 2 से 3 presentations होते थे. एक भी presentation ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मैंने मेरा 100% दिया. There was 100% presentation,
एंड आई विल वाउच फॉर इट एंड टेल यू अपफ्रंट क्या जितना रिसर्च मैं करके लाता था उतना कोई स्टूडेंट करके नहीं लाता, बिकॉज मेरे को पता था कि मैं एमबीए में मैं स्मार्ट हूँ। अगर आप मेरे को अकाउंट्स करने बोलोगे या अगर आप मेरे को और कुछ करने बोलोगे कि भाई एचआर का कुछ तुम्हारे ये होते हैं रूल्स सेक्शंस वगैरह वगैरह होते हैं, आप वो लर्न कर लो, मेरे से लर्न नहीं होता। बट आई न्यू दैट आई कैन गैदर इंफॉर्मेशन एंड आई कैन डू द बेस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइड। तो मेरे प्रेजेंटेशंस वर द बेस्ट इन माय बैच। लोग 2-3 स्लाइड बना जाते थे, 15-15 स्लाइड बना जाता था, पर एक भी स्लाइड पे इंफॉर्मेशन नहीं हो ऐसा, या रिडंडेंसी हो, या मैं ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू। You will have to tell yourself, believe in yourself that you can do it. That is what you will have to do in the next 5 years. That everything you do, you make small, and then keep achieving it. आपका एक सेमेस्टर का माइलस्टोन होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर का होना चाहिए। कॉर्पोरेट में गए तो आपको what work has been assigned to you is not what you will do. उसके अलावा मैं और क्या करता हूँ so that my importance is understood by the company is something you will have to prove to your immediate colleagues and all. So that is how you build. Every aspect of MBA which is being taught to you. अभी कैसा है? I was very naive. मैं सोचा कि यार मैं MBA कर रहा हूँ, मैं finance करने वाला हूँ. I used to miss marketing classes. I used to miss HR classes. मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था, न्यूज़पेपर पढ़ते रहता था वगैरह वगैरह वगैरह. I used to do all that. Today I miss that aspect. क्या मैंने तब HR क्यों नहीं किया, तब मैंने marketing क्यों नहीं किया? Because as I said, we are part of a puzzle where we have to connect to each and every topic. तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, if you are into agri or if you are into pharmacy, if you are into finance, if you are into marketing, आपको अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट लग रहा है कि बस मार्केटिंग मैं क्यों करूं, मेरे को जरूरत नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है क्या corporate ethics मैं क्यों करूं, मेरे को जरूरत नहीं है। You are going to become a piece, as I told you, of a puzzle, and you will need that knowledge. You should have that knowledge, and you should be able to tell people कि बस मेरे को आज इसका आंसर नहीं पता है, मैं तेरे को कल बताऊंगा। So if you want to become that important, if you want to become part of that whole puzzle, आपको हर aspect MBA का हर एस्पेक्ट आपको 100% इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। मार्केटिंग के जब प्रेजेंटेशंस होते थे तो उसमें जैसे मैं बोला मेरी 15 स्लाइड होती थी, मार्केटिंग में मेरी 2 स्लाइड होती थी, क्योंकि आई हैड नो नॉलेज अबाउट व्हाट इज मार्केटिंग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और ये सब चीजें ना MBA की बहुत इजी है इफ यू अप्लाई विद योर माइंड। इफ यू डोंट अप्लाई योर माइंड तो फिर अपने को लगने वाला है, डर लगने वाला है कोई भी चीज में एंटर करने के लिए। बट if we are ready to be 24/7 and if we are ready to set small milestone and do every aspect of what is being taught to you, it is important. The next item is meet people and ask serious questions. अभी क्या हो जाता है MBA में आपके पास इसके पहले भी 2-5 लोग इंडस्ट्री से लोग मिलने आए होंगे। They will come to meet you throughout the next 2 years. They will be here to take sessions on what is corporate. They'll come here to teach you what is marketing. They'll come to talk to you and वगैरह वगैरह. You will have to ask them. क्या हो जाता है अपने को लगता है यार ये सब इनको पूछूंगा बाकी लोग हंसेंगे, but you will have to ask question, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, आप जो कर रहे हो, it is basically what जो बुक में लिखा है, and we are the guys who are implementing it into the इंडस्ट्री। सो अगर आप हमको नहीं पूछोगे कि सर मैंने पढ़ा ऐसा था बट एक्चुअली ऐसा होता है, तब तक यू विल नॉट गेट एनी आंसर। सो यू विल हैव टू बी ओपन टू पीपल, आस्क क्वेश्चंस एंड रिमेन इन कांटेक्ट विद पीपल। मेरे टाइम पे जितने भी इंडस्ट्री से लोग आए थे, आई एम ऑलमोस्ट इन एवरीवन्स कांटेक्ट। आज आई हैव स्टार्टेड एन FMCG कंपनी। इन लास्ट ईयर 1 year वी डिड अ बिजनेस ऑफ 100 CR. I wanted to do digital. I met someone here, सर नाम से उनका कंपनी है, उनको मिला, मैं उनको बोला यार सर मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। He gave me the support. अपने कॉलेज से कुछ बच्चे निकले हैं,
who has done marketing of it and started their own. They have become channel partners, basically brokers in real estate. So I went to them. I told them that I am launching a project. First, tell me whether it is correct or not. After working with HDI, after working with Bhagwa, the best of the best of industry, I don't have a knowledge of Pune. I have knowledge of Mumbai. So I took hold of our alumni. I told them that I have a land. I want to launch a project. आप मेरे को बताइए मैं कितना बड़ा फ्लैट बनाऊं, क्या एमिनिटीज दूं, कितने में बेचूं. The whole team gathered. They told me अपने को ऐसे करना है. I launched a project, a very small project. जो मैं वहां पे करता था और जो यहाँ पे करता हूँ, very different. But a very small project. I launched 40 flats. I sold them in 6 months. 40 flat without construction, 6 months में मैंने बेचा. Because I asked people questions. मैं अगर ये बोल के रुक जाता कि बॉस मैं तो बहुत बड़े कंपनी से काम करके आया हूँ and I don't need anyone's information or help, that would have been wrong. But because I spoke to them, I asked them questions. बॉम्बे में क्या होता है, बैल्कनी नहीं बनती, पुणे में बैल्कनी बनती है. तो मैं उसको बोला यार लोगों को बैल्कनी क्यों दे, अपन रूम बड़ा कर देंगे. तो they said no, पुणे is different, it's not Mumbai, पुणे is different, यहाँ पे बैल्कनी देनी पड़ती. So I asked silly questions and they replied to me and it was a successful project. आज project big गया है, completion में है. In last 1 year, throughout the COVID period, this is what I have achieved. Same is FMCG. कि हमको लगा कि यार अपने को कुछ करना चाहिए. COVID है, रियल एस्टेट में 2-3 साल में एक बार इनकम आती है. वो इनकम में अपन सोचते हैं कि गाड़ी ले या घर बनाए या नया प्लॉट ले कंस्ट्रक्शन करने के. तो हमको लगा कि एफएमसीजी करते हैं. तो अगर एफएमसीजी में इस ऑर्गेनाइजेशन से या यहाँ पे बनने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों से मैंने बात किया. दे हेल्प मी आउट एंड दैट इज हाउ आई सर्वाइव. तो यू विल हैव, मतलब आज मेरे को कॉलेज छोड़ के 7 साल हो गए बट आई स्टिल आस्क क्वेश्चन. सो यू विल हैव टू आस्क सिलियस्ट ऑफ द सिलियस्ट क्वेश्चन टू पीपल हु आर कमिंग. आप अगर बोलोगे कि यार उनको पूछूंगा उनको बुरा लगेंगे बाद में कैसे. It is your life. It is your life which is going to make difference. So you will have to ask the silliest question to people around you. No work is small work. As I told you, मैंने basically I started when I started working. So the first thing I got was वो मेरे को बिल लाके देते थे, मैं Excel में एंट्री करता था और नीचे जाके अकाउंट में दे देता था. ये सर का खर्चा है. But उसने ये देखा कि अगर मैं वो काम भी कर रहा हूँ तो मैं दिल से कर रहा हूँ. मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि हाँ सर मैं करता हूँ और फिर मैं 3 दिन के बाद अपडेट कर रहा हूँ, 4 दिन के बाद अकाउंट्स में लेके जा रहा हूँ. यहाँ से MBA फाइनेंस करने के बाद में इस कॉलेज का ओनली पर्सन हु गॉट इनटू रियल एस्टेट, दैट टू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज इन मुंबई. 10,000 करोड़ की कंपनी है. आई नेवर केप्ट दैट एटीट्यूड क्या इसने मेरे को अगर ये बोला है तो मैं ये नहीं करूँ. आई न्यू क्या अपने को ये करना पड़ेगा. दैट इज हाउ आई सर्वाइव. एट द एंड ऑफ द डे दैट वर्क फॉर मी. यहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा इन नेक्स्ट 2 years के बस as part of curriculum you are doing 10 things, but apart from those 10 things you are going to become part of various activities like कोई ट्रेनिंग जो अपना ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस होता है उसके अंदर आपको बोलेंगे कि यू बिकम पार्ट ऑफ दैट टीम. किसी को बोला जाएगा कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ, अभी जैसे रविकांत सर है, ही इज अरेंजिंग एवरीथिंग. देयर विल बी अ टीम हु विल हेल्प हिम टू डू ऑल दीस एक्टिविटीज. ये बनाना है, डेकोरेशन करना है, इवेंट्स करने हैं. तो वो सब चीजें में भी आपने इन्वॉल्व होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज़ दैट इज समथिंग इज गोइंग टू गिव यू any sort of experience and that experience matter at end of the day. मैं यहाँ पे था, मेरे को some minister was going to come महाराष्ट्र का and उसके लिए मराठी में सब करना. zero मराठी. मला मराठी येत नाही, थोडीफार शिकलोय मागच्या 2 वर्ष. पण मेरे को स्टेज पे खड़ा कर दिया, जाओ अभी तुमको मराठी में उसको इंट्रोड्यूस करना है और मराठी में पूरा शो करना है, क्योंकि तब हमारे पास मराठी स्पीकिंग किड्स वर नॉट those many. किया स्टेज पे खड़ा, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. मैंने बहुत मिस्टेक की बट एवरीवन वेलकम इट. बोले तूने कोशिश किया ना. वो मिनिस्टर को भी समझ में आ गया कि इसको कुछ आ नहीं रहा है, बट एवरीवन एंजॉयड. क्या बोले हाँ, देयर इज समवन हु इज ट्राइंग. सो आप जो भी काम कर रहे हो,
any efforts you are putting, you ensure that आप दिल से कर रहे हो। तो कोई भी काम छोटा नहीं है। आप उसके बाद में आई टेल यू व्हाट ऑल आई हैव डन। पिछले 7 साल में रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें चेंज, जीएसटी आया है, रेरा आया है, डीमोनेटाइजेशन हुआ है, हर एरिया में डेवलपमेंट अलग अलग स्टाइल की हो गई। यहाँ पे अगर आप समझो 100 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट ही बना सकते हो, बट बॉम्बे में आप 100 स्क्वायर फीट के ऊपर 300 स्क्वायर फीट बना सकते हो। अलग अलग चीजें होती है, तो डेवलपमेंट प्लान्स चेंज हुए। रेरा के टाइम I was an executive assistant to the managing director. अभी किसी का असिस्टेंट बोला तो तुम लोगों को लगेगा कि यार ये पानी वानी दे रहा है। Executive assistant is different, personal assistant is different. Executive assistant helps in every business aspect. Personal जो रहता है वो चाय पानी पिलाता है। I was executive assistant. Executive assistant के नाम पे I was interacting with every team, legal, finance, operations, sales, marketing. मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ। And that time रेरा came. रेरा आया and we realized कि हमारे पास तो कोई टीम ही नहीं है जो रेरा के ऊपर काम कर रहा है। The directors and everyone in legal team were working on it. बॉस ने बोला श्रीराम इनसे नहीं होने वाला है, you will have to take in charge. मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट रजिस्टर करने को मेरे को 25 डेज लगे। 3 महीने में हमको 35 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करने थे। आई वाज 10 डेज बिहाइंड बिकॉज़ 10 दिन तक डायरेक्टर लोगों ने कोशिश किया करने का उनसे हुआ नहीं। इट टुक मी 25 डेज। मेरा पहले जो 35 डेज थे ऑफ 90 डेज चले गए सिर्फ एक प्रोजेक्ट रजिस्टर करने। उसके बाद में मैंने 80 डेज मतलब रेस्ट ऑफ 45 डेज में मैंने बचे हुए 34 प्रोजेक्ट्स पूरे रजिस्टर, क्योंकि मेरे को कंपनी का सपोर्ट मिला, मेरे को इसका सपोर्ट मिला, उसका सब हर चीज का सपोर्ट मिला। सो आई वाज डूइंग सो मेनी थिंग्स कि आई वाज टॉकिंग टू फाइनेंस, आई वाज टॉकिंग टू दिस, आई वाज टॉकिंग टू दैट, एंड ऑल ऑफ सडन यार ये रहना क्या देखिए मेरे को। तो पॉइंट इज क्या वहां पे कंपनी का पैसा बचा। एक प्रोजेक्ट रजिस्टर करने का आदमी लाख रुपया लेता था, मैंने कंपनी के 35 लाख रुपए भरे। उसके बाद में एवरीवन रियलाइज किया यार ये पोटेंशियल का काम था जो अपन ने सबने मिस किया है, एंड दैट इज वेयर आई वाज अवार्डेड एज द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर द ईयर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमको लैपटॉप दिया, कार दिया, सब दिया उन्होंने, बस यू सेव 35 लाख, टेक अ चंक। तो वही था कि मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैंने काम किया एंड ये भी सोचा नहीं कि मेरे को इससे पैसा मिलना, बट बैक एंड पे उसका मेरे को मॉनेटरी फायदा भी मिला। नेक्स्ट, तो you will have to ensure that you do every small. Next point is become master of everything. अभी वो क्या होता है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसे नाम की भी एक चीज होती है, बट एज एन एमबीए वी डोंट हैव दैट ऑप्शन, वी हैव टू बिकम मास्टर ऑफ एवरीथिंग। अपने को टच बेस हर चीज का आना ही आना चाहिए, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, यू आर डूइंग। अभी एग्री वाले बच्चे हैं, फार्मेसी वाले बच्चे हैं, आज के टाइम पे एग्री और फार्मा जैसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। I can say agri because I have seen the potential once I joined FMCG, once I started FMCG. क्या agri का क्या potential? At the same time, COVID के time तो pharma का पता ही है अपने को क्या क्या होता है। So pharma itself has a huge potential. And अभी कैसा होने वाला है क्या, pharmaceutical industry, इसमें बहुत सारी चीजें अपन चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना का 1 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है, it is through chemical and pharmaceutical, and the whole world is saying that stay away from China. अगर चाइना से बिजनेस लूज होता है, इंडिया गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, हाउ मच ट्रिलियन इंडस्ट्री, हाउ मच ट्रिलियन जीडीपी दे वांट टू गेट, 5 ट्रिलियन। अभी 1 ट्रिलियन का गैप बनने वाला है चाइना से, केमिकल के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए। अभी अगर वो 1 ट्रिलियन का गैप है, एज अ कंट्री अगर अपन फार्मास्यूटिकल अपना अप करते हैं, बिकॉज वी आर बेस्ट इन फार्मास्यूटिकल, वी आर द मेडिकल फॉर द वर्ल्ड, अपन मेडिकल स्टोर है होल वर्ल्ड की, वी हैव द अपॉर्चुनिटी ग्रैब। अगर अपन ने उसका आधा बिजनेस भी लिया, हाफ क्लियर भी लिया, तो वी आर सफाइसिंग द ड्रीम ऑफ 5 ट्रिलियन बाय 10 years। तो फार्मास्यूटिकल का भी एक अलग
I have people who have worked in merger acquisitions, real estate, and worked on ये जो होती है ना अपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर जाती है इधर से उधर, so it is now into private sector. तो उन लोगों का जो business है, now what has happened is that guy has entered into pharmaceutical because there is a gap and we have to fill that gap. So pharmaceutical again huge importance. तो pharmaceutical वालों को ये अगर बोले कि अरे अभी हम pharmaceutical को बहुत importance है और तुम अगर सिर्फ pharmaceutical वाले कोर्सेज करोगे और उसके अंदर फाइनेंस को भूल जाओगे, एचआर को भूल जाओगे, वो नहीं चलेगा. तुमको सब करके रखना पड़ेगा so that आपने बीएससी किया है, बीएससी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं आएगा जितना आपको एमबीए को इंपॉर्टेंस आएगा. आपको हायर करने वाला एमबीए बोल के हायर करेगा. कोर केमिकल, कोर फार्मास्यूटिकल या कोर एग्री वाला बंदा बोल के तुमको बीएससी के इसके ऊपर नहीं लेगा, तुमको एमबीए के इसके ऊपर. So there is an opportunity, grasp it with both hands, and in next 5 years, pharmaceutical and agri is the future, is going to be the future. क्योंकि इंडिया ने आईटी पीक कर गया है, इंडिया ने फाइनेंस पीक कर गया है. आईटी में अभी देयर आर कंट्रीज, फिलीपींस है, ये है, वो है, ब्राजील है, जहाँ पे तो अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे आईटी वालों का काम बढ़ रहा है, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि हमको अगर इंग्लिश आई तो हमको आईटी का धंधा मिलेगा. तो इंडिया से थोड़ा दूर जा रहा है. सो आईटी हैज प्लेटूड, फाइनेंस एक अलग स्टाइल में चलता है. अपने को करना है फार्मास्यूटिकल एग्री. ये जो चीजें हैं ना, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो गेयर अप एंड एंश्योर कि आप इसको अपना पोटेंशियल दिखाओ एंड यू एंटर इनटू बिजनेस. डेडिकेशन, पैशन एंड बिलीफ. अभी इतना सब करना है, अगर आपको ना डेडिकेशन है, ना पैशन है, ना अपने आप में बिलीव, तो ये नहीं होना. आप एज आई टोल्ड यू, मेरे को पता था कि मेरे को अकाउंट्स में तकलीफ होने वाली है. मेरे को जहाँ पे लर्न करना है, रट्टा मारना है, एचआर का कुछ है, मार्केटिंग का कुछ है, मेरे से नहीं होने वाला है. क्योंकि बचपन से मेरे लोग बोलते हैं ना, अपने को 16 शीट का आंसर शीट भरना है, मैं वो 16 शीट 8 शीट में आंसर लिख के आ जाता. क्योंकि से एक स्टेप लिखना, एक ड्राइंग करना, वो मेरे से होता नहीं. तो मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है. तो ये सेम चीज है क्या, यू विल, आई हैड अ बिलीव इन माई सेल्फ, क्या मैं सर्वाइव कर जाऊंगा. तो सेम बिलीव आप में खुद के होना चाहिए, क्या बस मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूंगा. यू वॉट एवर यू डू, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट रियल एस्टेट. आप रियल एस्टेट का मेरे को इंडिया का कहीं का भी सवाल पूछे, आप मेरे को पूना में कौन किसका प्रोजेक्ट है, कहाँ है, आप मेरे को पूछिए, मेरे फिंगर टिप्स पे सब ये एरिया में. बिकॉज दिस एरिया इज अगेन वेयर, मैंने इधर 2 प्लॉट छोड़ के पीछे के साइड में मुड़ा नदी पे एक हफ्ते पहले 10 एकड़ जमीन. तो इस एरिया में अगर आप मेरे को पूछोगे किसका क्या प्रोजेक्ट है, किसका क्या रेट है, कौन क्या मार्केटिंग कर रहा है, उसकी मार्केटिंग की टीम कौन सी है, उसका कंस्ट्रक्शन करने वाला कौन है, मेरे पास सब इंफॉर्मेशन. आई हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज माय पैशन. दैट इज माय पैशन इन रियल एस्टेट. क्या मेरे को रियल एस्टेट करना है. ये कोविड आया, सब कुछ हुआ, हमको एक पैरेलल बिजनेस चाहिए था, इसके लिए हमने एफएमसीजी किया. बट आज जो भी पैसा हमको आने वाला है, हमको पता है रियल एस्टेट से. तो रियल एस्टेट रिमेन्स माय पैशन. यू आस्क एनी लीगल, फाइनेंस, आप कुछ भी मेरे को पूछे, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन रियल एस्टेट. और इसके पहले मैं जब आता था यहाँ पे, इसके पहले भी 3-4 सेशंस हुए हैं मेरे, मैं हर किसी को कोशिश करता कि नहीं तू आ रियल एस्टेट में, आ तू रियल एस्टेट में सर्वाइव करे. आज थिंग्स हैव चेंज. रियल एस्टेट के जैसा फार्मास्यूटिकल, एग्री, सबको इंपॉर्टेंस आया है. तो अपना अपना पैशन ढूंढिए एंड इनकॉर्पोरेट. मनी इज नॉट एवरीथिंग. अभी जैसे बहुत सारी बार होता है कि एज आई टोल्ड यू, आई मेड फ्रेंड्स हियर. पीपल हैव मेड मी देयर फ्रेंड्स. दे कम टू मी कि बस वी वांट टू डू समथिंग, हमको रियल एस्टेट में कुछ करके दीजिए आप हमको. देयर इज अ न्यू कंसेप्ट कमिंग इन, को लिविंग नाम से कंसेप्ट. को लिविंग में क्या होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर समझो 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट के अंदर 2 रूम्स है, हर फ्लैट में 2 रूम्स है. तो दे सेल बेड वाइज, क्या ये बेड पे 8500, व्हाट यू कैन यूज इज वॉशरूम, किचन वगैरह वगैरह. दिस कंसेप्ट केम इन. lot of people wanted to invest money. A lot of people have
background to it. That's why they wanted to invest. So I have a friend from locals. Uske bhaiya was a big time in API. He came to me saying that यार पुणे में अपने को 1300 बेड करते हैं by end of 1 year. 2020 में खत्म करना था. उसके पहले हमको पता नहीं था कोविड आने वाला. हम बहुत जोश में थे. 2020 में अपने को करने का है. अपने को we have to ensure that we have 1300 beds. मेरे रियल एस्टेट के कनेक्शन से in 3 months we froze 1100 beds. And when we froze 1100 beds, मैंने उनको 1 रुपए की बारी नहीं दी. Because मैं आपका इतना धंधा करके दे रहा हूँ, you didn't know. Because money was never my passion. Today, the company I was talking about, founder, I call him Priya, but उनका जो co-founder है, she is wife to Education Minister of Maharashtra, daughter to a big industrialist in Maharashtra. At any point of time, she calls me and she tells me, Shriram, yaar, ye development ka ye issue hai, to solve. This is just because I never ran behind. क्योंकि money उनको follow करता है. Money always follows you. The kind of work you do, the amount of patience you put, money हमेशा आपको follow करता है. You don't have to follow. तो अगर आपके पास opportunities आ रहे हैं, तो उसको पहले आप ये सोचिए क्या मैं क्या सीख सकता हूँ, what I can learn from it, what I can do with it, and then think what I can earn from it. तो ये जो चीज है ना, ये चीज मैंने पिछले 3-4 सालों में जानी. ये मतलब MBA करा था मुझे समझ में नहीं आया, इनिशियल कॉर्पोरेट लाइफ समझ में नहीं आया. आज मुंबई में 3-4 बैंक्स और 2-3 डेवलपर्स put together 7 to 8 people. Anything they want to do it in Mumbai, Pune. उनको जमीन खरीदनी है, किसी के साथ टाई अप करना है, किसी को फंडिंग करना है, किसी के यहाँ स्टॉक खरीदना है. They will call me and they'll ask. They will ask me, क्या है श्रीराम, ये प्रॉब्लम है, क्या है? They come, they meet me, we resolve problems, and that is how we have grown. I started my apart from where I am working, what I am doing. I have a private consultancy जहाँ पे ऐसी चीजें आती है. I solve them. I sit late in night. I solve them. I give it to them, and things just go. तो ये जो मेरे पिछले 4-5 साल के efforts हैं, this is how things have evolved from, and this is how the overall crux is you will have to work 24/7 and enjoy what you are doing passionately. That is the crux. And हर छोटा माइलस्टोन आएगा आपका, you achieve, you enjoy it, but that enjoyment shouldn't last. क्या तुमने जो किया और मैंने जो यहाँ हर चीज की थी, यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए थे, आज भी मेरे को पूरे हैं, because that was a milestone which I took and got. So this is what MBA has to be. This is how your life has to be. Next 5 years घर वालों को बोल दो ना दिवाली पे आऊंगा, ना होली पे आऊंगा, ना गणपति. बट नेक्स्ट 5 years के बाद में यू विल हैव इनफ टाइम. मेरे को आज किसी को परमिशन लेके आने की जरूरत नहीं है कि मेरे को लेक्चर पे जाना है, प्लीज ग्रांट मी. मेरे को आज वो करने की जरूरत है. आई ट्रैवल द वे आई वांट, आई ट्रैवल विद द पीपल आई वांट, एंड आई गेट माय ओन. सो 7-8 साल में मेरे लिए पूरा पिक्चर चेंज हो गया. I still believe that I have to sit on that side, not this side, because there is a lot to learn from. आपके जो भी लोग आएंगे, इन लोगों से भी, I guess, Operation Desai Brothers. Desai Brothers, sir, again FMCG company है ना? Desai Brothers, FMCG. So I feel that I should be again on this side, learning from it, because मैंने कुछ तो भी नया. Again agriculture, I want to sit on that side. So be open to learn, ask, but continuously evolve yourself. ठीक है? That's from me. इससे ज़्यादा मैं अगर बोलूँगा तो तुम बोलोगे कि यार ये अपनी अपनी बात कर रहा है. So that's from me. Any questions you have, again, ask anything, please. Now सांग. हर कोई आता है और पहले पूछता है नाम बोलो, फिर क्या कर रहे हो बोलो. क्या है पता है क्या, मेरे को याद तो रहने वाला है. But if someone is asking you a question, I will definitely remember more. So first introduce yourself and then ask. My specialization in farm. Okay. And my question is, you told me you told holistic knowledge, but
जैसे बोला मैं पढ़ता नहीं था, बट एट द सेम टाइम मैं बोला कि मैं दो चीजें बोली मैंने, एक तो आई यूज्ड टू पुट ऑल माय एफर्ट्स इन रिसर्च एंड एवरीथिंग, एंड सेकेंडली आई स्टिल फील बैड कि मैंने मार्केटिंग किया। तो दैट इज अ होलिस्टिक अप्रोच, क्या तेरे को हर चीज के बारे में पता रहना चाहिए। अभी एमबीए में तेरे यूनिवर्सिटी कोर्स है, राइट? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव? 12 सब्जेक्ट्स। 12 सब्जेक्ट्स में क्या क्या है? ठीक है, ओके। उसके अंदर कुछ ना कुछ एक एचआर का एस्पेक्ट है, मार्केटिंग का एस्पेक्ट है, एक वो अपना क्या होता है वो ऑपरेशंस का है, एक वो होता है जिसमें वो बहुत सारा भयंकर मैथ्स होता है। नहीं, अकाउंट तो अलग है, एक होता है यार। So I topped it. I know I topped it, but I am not able to recollect it. हाँ, so ऐसा कुछ है। तो ये सब चीजें तेरे को आनी चाहिए। ये आनी चाहिए मतलब theoretically नहीं, इसका implementation। तेरे को corporate life में इसको कैसा implement करना है, वो तेरे को आना चाहिए। मेरे को marketing का implementation नहीं आता, but I have money to call people and tell me how to do it. So that is, वो जो पैसा जा रहा है उसको, उसका मेरे को बुरा लग रहा है क्या वो पैसा मैं बचा के मेरे पास रख सकता, but now history is history, and that is where I missed something. Yes. And जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, हाँ, every time they ask us similar question, tell me something about yourself. So according to what's नहीं भाई क्या है, कॉर्पोरेट में है ना 9 to 5 जॉब करते हैं हम ऐसे बोलते हैं, एंड फिर हमको जब कोई मिलता है यार इसको सवाल जवाब करो, तो वी फाइंड इट अमेजिंग, जैसे तो आज की अपन थोड़ी ना, दिस इज व्हाट अभी मेरे को पता है क्या, मैं जैसे आया तुमको पूछा क्या 5 साल में तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तुमने बोला कितने लोगों के दिल में था क्या आई वांट टू बिकम अ सीईओ एमडी वगैरह, कितने लोगों के दिल में था दिस आंसर? ये अगर आंसर आप हमको बोलोगे तो हमको पता है कि 5 साल में क्या 25 साल लग जाते हैं एमडी सीईओ बनने के लिए, बट मेरे को एक चीज की पता है कि ये बंदा सोच रहा है कहीं ना कहीं पहुंचे, तो डाउन द लाइन यू हैव टू रियलाइज क्या एमडी बनने के लिए अपने को अभी कैसा होता है, आईटी कंपनी में जाएगा, कोई भी कंपनी में जाएगा, देयर आर माइलस्टोन, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर मैनेजर वगैरह वगैरह, फिर प्रेसिडेंट बनोगे, फिर डायरेक्टर बनोगे, फिर एमडी बनोगे, ये बहुत लंबा चेन होता है। एक चेन को क्रॉस करने के लिए आपको 2-3 साल पहले एग्जीक्यूटिव मैनेजर वगैरह बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है, आप एवीपी लेवल पे जाओगे, प्रेसिडेंट लेवल पे जाओगे, डायरेक्टर लेवल पे जाओगे, यहाँ पे आपको 5-5, 7-7, 8-8 साल लिखना पड़ता है। तो ये जो चीज है ना, ये तू एचआर में सीख सकता है क्या, इफ आई टेल देम दैट आई वांट टू बिकम अ सीईओ, ये बहुत बालिश आंसर हो जाएगा, आई हैव टू बी वेरी श्योर क्या क्या चाहिए, तो मेरा आंसर ये रहेगा क्या, टू गेट 50% अप्रेजल एवरी सिंपल। मैं बोल रहा हूँ 58% क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर पेपर 70, सेकंड ईयर पेपर 30, ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया अगेन 70, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वापस 50, मेरे पहले 4-5 साल प्लस 50 के ही थे। तो यू हैव टू से दैट बॉस what I want to achieve is appraisal, पहले उसको अच्छे से बोलना है बॉस I want to do wonders with your company, but at the end of the day you have to tell me that बॉस मैं खुद 50% appraisal चाहता हूँ, that is what my motive is, and if he asks you who you are, what you are, तो भाई you have to be very clear। अभी कैसा है, if that person is from you are to pharmaceutical, if he asks you pharmaceuticals and अगर तू ऑपरेशंस में जाना चाहता है फार्मास्यूटिकल या तू मार्केटिंग में जाना चाहता है फार्मास्यूटिकल, तेरे आंसर अलग-अलग। तू अगर बोलेगा मार्केटिंग में जाना चाहता है तो आपने यहाँ पे इतना मेडिकल है, वही थोड़ा सा रिसर्च करके कि कौन सी मेडिसिन है, क्या है, क्यों है, टाइप है, और फिर उसको बोलना है कि सर आई हैव डन माय रिसर्च, दीस आर, मतलब उसका समझो डिफरेंट एक्सिकल या सिप्ला, तो बोलना सर आपके ये 50 प्रोडक्ट है, मैं आजू बाजू में गया आपके काउंटर पे 50 प्रोडक्ट में सिर्फ 5 प्रोडक्ट, आई वांट टू पुश योर 45 प्रोडक्ट्स, दैट इज वेयर ही विल फील कि यार ये बंदा रिसर्च कर, दैट इज वेयर ही विल फील कि अरे यार इसको अपन ने और थोड़ा सा पुश करना चाहिए, इंपॉर्टेंट देना चाहिए, so that is how things will evolve, so this is what you should say। No one wants to know who you are, everyone wants to know what you can do for, so you have to tell him बस मैं ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्या करेगा,
कभी कभी बैकफायर भी होता है, बट 90% टाइम वो टाइम ठीक है। आपने अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जो आपको मिल रही है, तो हाउ टू चूज राइट अपॉर्चुनिटी, हाउ टू चूज राइट अपॉर्चुनिटी। So HDI had an opportunity when it came to me. मेरे को जो पैकेज मिल रहा था मेरे एक्सपेक्टेशन से हाँ, बट फिर मैंने देखा क्या रियल एस्टेट कंपनी इन मुंबई, एक रियल एस्टेट कंपनी मुंबई कैन बी इक्विवेलेंट टू 50 रियल एस्टेट कंपनी ऑफ 10,000 करोड़, इधर से 50 कंपनी मिक्स कर 10,000 करोड़। तो मैं ये देखा कि मेरे को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को जगह इंपॉर्टेंट, मेरे को कहाँ सीखने मिलेगा। तो यू आर एट दिस पोजीशन जहाँ पे मेरे को पता है क्या मेरे को आज सीखना जरूरी, पैसा जरूरी। मेरे को पैसा कब जरूरी है व्हेन आई गॉट मैरिड, टिल देन मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट वाज सेकंड। बट शादी के बाद में आई गॉट सपोर्ट, मनी स्टिल इज सेकेंडरी टू मी बिकॉज़ माय वाइफ आल्सो वर्क्स अवेलेबल, बट आई एम गुड टू डू सेट। सो इंपॉर्टेंस तेरे को ये देना पड़ेगा कि हाउ things will change with this company for next 5 years, this opportunity for next 5 years, small milestone ये चीज तेरे लिए कैसे चेंज कर सकता है। till the time you are working you can always shift gears। अगर तुमने खुद का कुछ चालू किया तो तुमको तकलीफ होगी कि बस यार मैंने कंपनी चालू कर दी, इसको बंद तो नहीं कर सकता, but you can always change gears when you are working with someone else। and ठीक है ना, I'll take that, I'll take okay। हाँ, ये जो जहाँ तू बैठा है, ये जिसने बनाया है, ये वाला रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सब जो बनता है, ये सब रियल एस्टेट होता है। जो रास्ते बनते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अच्छा और तुम्हें अच्छी चीज याद है, मैं बहुत उछलता था कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है क्योंकि इंडिया वाज बूमिंग। अभी अपने गडकरी जी हर महीने हर रोज 50-50 किलोमीटर रास्ते बना रहे हैं, तो मेरे लिए ऐसा था यार इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे लिए स्कोप, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में एमबीए की कोई गरज नहीं क्योंकि वहां पे एवरीथिंग इज लाइंड अप, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये है वो है, वहां पे एमबीए की जरूरत नहीं। देन आई शिफ्ट माय फोकस किया सेकंड थिंग, रास्ता तो बन नहीं रहा है, घर तो सबको चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, कपड़े और रोटी के पीछे एफएमसीजी वाले ऑलरेडी लगे हुए, मतलब मैंने मकान और तो आई वेंट फॉर रियल एस्टेट। तो दैट इज वेयर आई मेड अ चॉइस। आई डिड माय इंटर्नशिप, जो 1 साल के बाद का इंटर्नशिप होता है, समर इंटर्नशिप। आई डिड विद द कंपनी कॉल्ड सोमा, हु इज डिगिंग अंडरग्राउंड टनल फ्रॉम भिवंडी टू मुंबई। I worked on that project. I gave them an idea where your cost is going, you know, about the contract values and all. So मैंने वो किया था, तो मैं बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्साइटेड था, बट मैंने उस पीरियड में रियलाइज किया कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पे मेरी जरूरत नहीं रियल एस्टेट में। So I went to real estate. That is real estate, and that is how you decide or take decisions. Sure. तो maybe so आपने एफएमसीजी ज्वाइन किया, so आपको मतलब एक्सपीरियंस आया और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। सो आई टेल यू, एफएमसीजी ज्वाइन नहीं किया है हमने, रियल एस्टेट में 2 साल में एक साथ पैसा, रियल एस्टेट बिल्डिंग बनेगी, कस्टमर को पोजीशन देंगे, फिर पैसा आएगा। बीच बीच में पैसा आता है पर वो हमारा कंस्ट्रक्शन में जाता है या फाइनेंस वाले हमसे पैसा लेके चल जाते हैं, तो जिस बैंक से हमने लोन लिया है, तो 2-3 साल में पैसा आता है। तो मेरा आउटलुक ये था कि अपने को बस कंपनी के अंदर रेगुलर इनकम आनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एफएमसीजी चालू की। फिर एफएमसीजी में हमने ये देखा कि यार अपने को क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमको लगा क्या बिस्किट हर कोई बना रहा है, बिस्किट इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस, 3-4 बड़े कंपोनेंट है, हमको कुछ नहीं। फिर हमने बाकी जैसे अपने चॉकलेट हो गए, ये हो गया हमको नहीं जाना। फिर हमने देखा तेल, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास पैसे, और इन्वेस्टमेंट हाई है, टर्नओवर है, तो वी वेंट फॉर रिफाइनरी, वी बॉट अ रिफाइनरी। देन इसको क्या कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको मसाला कॉम्प्लीमेंट करता है, तेल को मसाला कॉम्प्लीमेंट, तो वी डिड ऑयल। ऑयल को क्या कॉम्प्लीमेंट करता है, वी डिड पापड़, केचप, ऐसे हम बनाते गए। तो इन लास्ट 1.5 years
we have done 30 products, 125 SKUs. तो FMCG select करने का reason ये reason है we are passionate about it. We are passionate about money, regular income. उसके लिए आज regular income आने को और 3 साल है. क्योंकि आज मेरे पास 100 सेल्स की टीम है, 100 लोगों की सेल्स की टीम है, बट मेरे को पता है वो मेरा ब्रेक इवन है. It will take 3 more years, but that is where brand will be set. और उस दिन मैंने अगर डिसाइड कर लिया मेरे को FMCG नहीं करना है, तो टर्नओवर के 5 टाइम्स मेरे को कोई भी वेंचर कैपिटल देगा. आज 200 करोड़ की कंपनी है, 5 साल में टारगेट है 200 करोड़ का, 400 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का केस प्लान 5 साल. That is what we want. एक मिनट अपन ऑनलाइन कर सकते हैं. We'll come back. How to work efficiently under pressure? From Michelle. So how to work efficiently under pressure? लाइफ में मैं जो 5 साल बोला हूँ, लाइफ में अगले 35 years आप अंडर प्रेशर ही रहने वाले. But if your concept is clear, that was this is a result what I want. आप अगर कोई एक मतलब consider this in your terms, क्या आपकी एग्जाम्स आ गई, तो you can always tell your college के बस आपका जो बाकी का co-curricular activity है वो साइड में रखिए. Next 5 days, I want to concentrate on my education. I want to study for my exams which are coming, and you give your exam. So you will have to first pressure में आने के पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए. मेरे को एग्जाम अच्छे से देनी है तो मैं बोलूंगा कि यार आपकी एक्टिविटी साइड में रखो, गेस्ट लेक्चर बंद रखो, सब बंद रखो, I will do this. So you will have to first focus what you want, then आप यहाँ पे पहुंच गए तो आपको एग्जाम को देना ही. वैसे आप करियर में कहीं पे भी हो, आपको पता है इसका रेजोल्यूशन, तो प्रेशर को आने ही नहीं देना, पहले ही अपना एक पूरा फ्रेमवर्क बना लेना. दिस इज हाउ आई वांट टू परफॉर्म एंड दिस इज हाउ यू अवॉइड प्रेशर. नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च में एग्जैक्ट क्या होगा. देयर आर 2 ways of looking. मार्केट रिसर्च में एक एकदम क्रूड लैंग्वेज में बोलूं, you will have to go door to door and gather information and present. Secondly, there is another option of doing it. There are thousands and thousands of websites with thousands and thousands of information. Decide, take 5 websites, उसका genuinity कितना है वो decide कीजिए, extract information from there and complete your market research. अभी question is market research में क्या होगा या मार्केट रिसर्च से क्या होगा. जब अपन यहाँ पे आए थे अपने को पता था अपने को एमबीए कौन सा, there was a research. Similarly, any work you do, if you have a backing of market research, it becomes easier for you to achieve. मार्केट रिसर्च से ये होगा. एंड मार्केट आज के तारीख में मैं आपको बताता हूँ, there are thousands and thousands of companies who does market research, publish it online. Person like me will go buy that and look करोड़ों का. So that is what market research is. क्योंकि people don't have time to. अभी simple सी बात है. What is market research? कार वाला ड्रॉप देखा है, Big Wheel देखा है, GSM Arena देखा है. They are doing research for us. So our life becomes easier. कोई नीच ढूंढो, like Practo आया था. Practo was again a research का कौन सा बेस्ट डॉक्टर है बताइए. तो दिस इज ऑल मार्केट रिसर्च. सो बेसिकली आपको क्या चाहिए, रिसर्च से आपको क्या अचीव करना है. एंड बहुत नीश हो सकता है. इंडिया में आजकल जैसे मैं बोल रहा हूँ केमिकल वाले आएंगे, फार्मास्यूटिकल वाले आएंगे. यू जॉइन सम कंपनी हु इज स्मॉल राइट नाउ, स्मॉल डूइंग रिसर्च ऑन फार्मेसी एंड केमिकल. जॉइन देयर, मे बी गिव देम आइडियाज. क्या चाइना का बिजनेस अपने को लाना है तो उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं. ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो मार्केट रिसर्च में होती है. तो एवरीथिंग इज मार्केट. If you want to start more like your project and matter, that's what should मैं पहले के 4-5 लाइन देता हूँ. So इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल इज
जियो। जियो ने क्या किया? जियो when मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी got split, तो दोनों के बीच में एक नॉन कॉम्पीट साइन हुआ था। अनिल अंबानी कर रहा था, अनिल अंबानी वाज डूइंग टेलीकॉम, तब वो छोटा मोबाइल आया था, ही वाज डूइंग दैट। दोनों भाई स्प्लिट हुए, दोनों के बीच में साइन हो गया क्या मैं टेलीकॉम में नहीं जाऊंगा और तू मेरे पीछे केमिकल में, दोनों का अलग हो गया। अनिल अंबानी को फेल हो गया टेलीकॉम में। दिस गाय स्टार्टेड, इसने क्या किया? इसने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया। इसने ये अगर चाहता था तो ये अपना जो आइडिया के या एयरटेल के या वोडाफोन के प्लान थे 300 350 रुपए, ये वो भी कर सकता था। ये लाइसेंस लिंक है इसके पास। इसने 100 Mbps का जो डेटा होता है, 100 Mbps की जो लाइन होती है जिसके अंदर यू हैव टेलीविजन, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, वो सेट टॉप बॉक्स इन्होंने गांव भर फ्री दी। तो यू हैव टू बी यू नो, तेरे को तेरा ये पता चाहिए कि तेरे को पेनिट्रेट कितना करना है, तेरे को मार्केट में पेनिट्रेट कितना करना है और तेरे को इसके थ्रू पेनिट्रेट करना है। आज सबके प्राइसेस सेम है, बट जियो के 35 करोड़ कनेक्शंस हैं, which is almost 45-50% of total cell phone connections in India. तो सबसे पहले as he said, a small idea अगर आपको स्टार्ट करनी है तो वो स्मॉल आइडिया का, जैसे अगेन connecting it to the things we are talking about, we are part of the puzzle, so we found our niche. तो अगर आपका आइडिया है तो आपको उस आइडिया का नीश पकड़ना है। यहाँ पे है ना एक इवेंट होता है सर, वो बिजनेस स्टार्ट करना है, इवेंट होता है तो इनोवेशन के अंदर एक इवेंट होता है नहीं, एक होता था जिसके अंदर है ना अपन वी हैव द कॉलेज गिव्स यू मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, फीट ऑन स्ट्रीट, हां फीट ऑन स्ट्रीट, कॉलेज गिव्स यू एक्स अमाउंट ऑफ मनी और आपको बिजनेस चालू करना है। मैंने कॉलेज से पैसा लिया है, उस दिन किया। व्हाट आई डिड वाज, ये पूरे एरिया में there are colleges and colleges, but what they you don't have is Appa Balwan Chowk. यहाँ पे अप्पा बलवन चौक नहीं है, लोगों को बुक्स चाहिए। So I created a Google page, सबको बोला तुम्हारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है बता। 35,000 की बुक्स हमने एक दिन में वहां से खरीदी और यहाँ लाके लोगों को समझने एडवांस। तो जो फ्लिपकार्ट कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं था, एक दिन में डिलीवरी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे, तो मैंने स्कोप देखा, मैंने इसका, मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे 10 कॉलेजेस है जिनको यहाँ से अप्पा बलवन चौक जाना है 1 घंटा आना, उसका आने जाने का खर्चा देना और वहाँ पे बुक्स का डिस्काउंट नहीं मिलता। मैंने बल्क में बुक खरीदी, मेरे को डिस्काउंट मिला, मेरे को ट्रैवल का एक बार का आने जाने का खर्चा लगा और गूगल पेज पे था, गूगल शीट बनाई थी तो गूगल शीट्स ऐसे भी फ्री है, तो वी मेड मनी। वो वापस कॉलेज को ही गया, वो बात अलग है, बट इट हैपेंड। सो आई फाउंड अ नीश। तो आइडिया थी ना, तो आइडिया का मेरे को गैप पता था कि किधर किधर क्या हम कर सकते हैं, तो वो था स्टार्टिंग फेज विदाउट दैट और स्टार्टिंग फेज। हां, तो अभी स्टार्टिंग फेज में ऐसा था, क्या आप अप्पा बलवन चौक जाओगे तो आपको 350 रुपए में बुक मिलेगी, मेरे को वो 270 में खरीदी, तो मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि मैं 350 में खरीद बेचूं, या मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि 350 प्लस ट्रैवल चार्ज लगा के 375 में बेचूं। मेरा माइंडसेट ये था अप्पा बलवन में 270 में मिल गया, व्हाट आई विल डू इज आई गिव दीस पीपल एट 320 में दिया तो उनको भी खुशी हुई, दे नेवर कॉम्पिटेड अगेंस्ट, उनको पता है चला यहाँ से जाएंगे वहां पे 4 बुक्स खरीदेंगे 270 ट्रांसफर, वहां पे खाएंगे वैसे 320 में पड़ने वाले, 30 रुपए बचाने से अच्छा है मैं इसको ही दे दूं। तो दैट इज दैट इट वर्क फॉर मी। सो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए ना डे 1 पे, जो इन्होंने लिखा है माइंडसेट ये है कि डे 1 पे ही प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हो, डे 1 पे तुम्हारा बेस स्ट्रांग करने की कोशिश करो। मेरे कस्टमर स्ट्रांग हुए, मेरा बिजनेस आइडिया स्ट्रांग हुआ और मेरे को कोई कंपटीशन में आया नहीं। अगर वो कंपटीशन में आता था तो वो एक रील के पीछे रह जाता था कि मेरे को पैसे कमाने, वो 350 में बेचता था और मैं 320 में बेचता। तो आई लेड अ फाउंडेशन, दैट वाज माय माइंडसेट। क्या अगर तुम वो जो होता है ना
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कट नहीं करना चाहिए. दैट वाज माय माइंडसेट. क्या अपन स्लोली इसको डेवलप करेंगे. आज एफएमसीजी में मैंने उनको बोला कि मेरे को अगले 3 साल लगेंगे ब्रेक. दैट इज अ फैक्ट. बट फॉर दोस 3 years I have to survive. I have to then what we start. हाँ, अभी इसमें बहुत सीधी सी चीज है. फ्लिपकार्ट वाज हियर बिफोर अमेज़न. ठीक है. फ्लिपकार्ट न्यू द पल्स ऑफ द इंडस्ट्री, बट अमेज़न है. अमेज़न के पीछे बैकिंग बहुत बड़ी है, बट अमेज़न आया एंड अमेज़न सर्वाइव. So you have to come with an idea in the business and serve. Simple. So that is how competition को आपको beat करना है. And niche तो देना ही देना है. अभी Amazon के पास Amazon Prime भी साथ में है, Amazon के साथ 50 चीजें और साथ में है. तो आपके छोटे से आइडिया में भी आप क्या नीच दे सकते हो जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है. That should be what you should do. How you manage fund because everybody needs finances. So how many? As I told you, we had money. अगर पैसा नहीं है तो मार्केट से उठाना पड़ेगा. मार्केट से उठाने के लिए जो ऊपर का आंसर था ना मेरा, क्या why am I different, what are my cash flow, what I am catering to, ये सब चीजें एक बिजनेस प्रोफाइल में बना. गो टू अ इन्वेस्टर, क्योंकि आपको बैंक पैसा नहीं देगा. यू डोंट हैव अ हिस्ट्री. गो टू एन इन्वेस्टर. प्रेजेंट डे देयर आर, आप पाने रोड से स्टार्ट कीजिए, क्या नाम है उसका, ऑर्किड होटल से स्टार्ट कीजिए एंड आप यूनिवर्सिटी काउंट तक जाइए. लेफ्ट राइट में आपको कम से कम 5 से 6 कोवर्किंग स्पेसेस मिलेंगे जहां पे दे गिव स्पेस टू कोवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे स्टार्टअप्स आते हैं. स्टार्टअप को अगर वहां पे एक सीट का तो 3,500 है तो वो आपको 1000 का मिलता है. बट वो आपको फंड रेज करके देते हैं. क्या हाँ तेरा आइडिया अच्छा है, मैं तेरे को फंड रेजर बना के देता हूँ, मेरे को 2 करना है. पैसा जमा होता है अगर आइडिया होता है. तो फाइनेंस का अगर क्वेश्चन है तो इट्स ऑल अबाउट मनी एंड मनी यू कैन गेट इफ योर आइडिया इज गुड एंड योर क्या बोल रहे हैं जो नियर बोल रहा था मैं, योर नियर हैज टू बी दैट. नेक्स्ट इधर है, इधर. हाँ सर my question was हाँ Zesty Foods and Spices LLP. वेबसाइट है zesty.foods.co.in. इसके अंदर हमारे पास ऑयल है, स्पाइसेस है, a lot of things. We are अभी अगेन he asked me क्या सेल्स कैसे कर सकते, क्या कैसे कर सकते. मार्केट पेनिट्रेशन होता नहीं. बात सही है, मार्केट पेनिट्रेशन होता नहीं, बट हमको हमारे ओवरहेड्स चलाने. तो we went to a company called Baramati Agro. इनका सब तरफ आपको चिकन का शॉप मिलेगा. उनका एक प्रोडक्ट आ रहा था चिकन विके. दुकान है चिकन की जहाँ पे वो पूरा चिकन का व्हाटएवर इज देयर दे गिव, प्लस दे वांटेड टू गिव स्पाइसेस. वो कंपनी 5,000 करोड़, उनके पास ये स्पाइस का 1 करोड़ का यूनिट लगाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं. वी अप्रोच देम, वी टोल्ड देम. सो व्हाट आइडिया वी वेंट विद वाज वेरी सिंपल. सर हमारा मसाला आप एक्सक्लूसिवली रखिए, सिर्फ जेस्टी का मसाला आपकी दुकान में बिकेगा, हम आपको उसके लिए डिपॉजिट देंगे. बस काउंटर ऑफर ये दिया गया क्या बस तू मसाला बना, तू पैक कर, पर मेरे नाम से. तो मैं गया कुछ बेचने था, पर मेरे को अपॉर्चुनिटी कुछ और एंड आई जस्ट मैं बोला नहीं मैं करूंगा. तो आज चिकन विकेट की 350 दुकानों में प्रोडक्ट चिकन बारामती एग्रो का है, बट पैक एंड मैन्युफैक्चर्ड मेरे नाम से जेस्टी फूड्स एंड स्पाइसेस. और वहां पे भी डिसीजन मेकिंग ऐसा हुआ था. ओनर ऑफ बारामती एग्रो इज रोहित पवार, वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ एंड शरद पवार के भतीजे वगैरह हैं. ही केम, he sat down, so he was 45 minutes late, we were waiting. He came, he knew why we were there. उसने बोला देख, are you going to double cost? बोला no. So by the time my boss realizes what is happening, मैंने बोला no, बोला ठीक है business. My intention was I wanted business. अब वो कैसे करना है वो मैं देखूंगा. So that is how. उसके अगले आधा घंटा मीटिंग चली. आधे घंटे में हमने स्कैम ऑफ 1992 डिस्कस, वो टीवी शो आया था, हम वो डिस्कस करते हैं. रोहित पवार जैसे आदमी ने आधा घंटा दिया, उसमें से मीटिंग वाज डन इन 30 seconds. तो माय इंटेंशंस वर कि मेरे को धंधा है. तो अभी वो जो है ना वो स्कैम भी था, कोई धंधा छोड़ा नहीं, तो वो ऐसा था.
want to do business. So that is what we do. और अगर बारामती एयरपोर्ट से आप अगर कोलैबोरेट नहीं करते तो आपका क्या? मैं कोई और इससे कोलैबोरेट करूँ। तो मेरे पास आज भी सी मैं जैसे बोला मैंने रिसर्च किया है रियल एस्टेट का, वैसा मैं एफएमसीजी में बिना रिसर्च के उतरा नहीं। एमडीएच ब्रांड सुना है आप? एमडीएच के दो भाई अग्रवाल, दोनों स्प्लिट हो गए। छोटे भाई ने बड़े भाई को 100 करोड़ रुपए दिया, बोले ये ब्रांड मेरा हो। अब बड़े भाई नया ब्रांड चालू कर रहा है, मस्त मसाला। तो he also wants someone to produce for us. हाँ, तो है अपने पास वो है, संजीव कपूर है। तो I had my research ready, क्या ये तो चलते रहेगा, मेरे को कहीं और सिर्फ धंधा लाना है। संजीव कपूर है, वो भी अपना मसाला दूसरे से बनवाते हैं। I am up for it. तो ऐसे मार्केट रिसर्च का मेरे पीछे क्या, मैं माल अगर नहीं भी बिक रहा है तो मैं ये करता हूँ। ऑयल में मेरे पास आज भी 125 टन रोज प्रोडक्शन होता है ऑयल, बट मैं रिटेल में जो मेरा जेस्टी के नाम से बिकता है वो सिर्फ 10 या 12 टन है। 110 टन में आज भी रिपैकर्स को बेचता हूँ। यहाँ पे मराठवाड़ा से कोई है नहीं है। देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड तिरुमल्ला, ये अभी थोड़ा मार्केट में आया है, सचिन पिलगांवकर, शिल्पा शेट्टी वगैरह को उसने लिया। वो आदमी के पास रिफाइनरी चलाने के लिए पैसे, वो तेल मेरे से लेके, दैट इज द सिचुएशन। वो मार्केटिंग में पूरा पैसा लगा रहा है, बट वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं लगा। दिस इज वेयर ही इज गोइंग, बट ठीक है मेरे लिए बिजनेस है, आई एम ग्रास्पिंग, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ऐसे बहुत सारे किस्से। So this is a market research. Before I entered, I did for FMCG. अभी क्या है, मैं बोल सकता था आटे में, मैं बोल सकता था बिस्किट में, यहाँ पे पैसे नहीं, ऑयल में पैसे ही नहीं। ऑयल में 50 पैसा छूटता है 1 लीटर के, और उसमें अगर वो पैकेट पड़ गया तो एट द सेम टाइम मैं मसाले में था जिसका मार्जिन था। तो मेरा मार्केट रिसर्च ऐसा था कि 2 प्रोडक्ट साथ में लेके चलेंगे और उसको, so that is where we start. And मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मेरा मार्केट रिसर्च होगा, इसमें बहुत मार खाई है जगह जगह पे प्रोडक्शन कर लिया और फिर समझ में आया डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स बन रहे हैं, माल जा नहीं सकता, माल यहाँ पे पड़ के सड़ रहा है। सीखा है, इन सब चीजों से सीखा है। You cannot be perfect, but then you have to be evolved enough to accept it. I am from here. Hey, yes, please. You want to ask? Yes. Myself, I'm Rosa. Yeah. From starting, many people told us that start from small companies. Whenever you're finding a job, Yeah. find it from small companies. But in future, if they are trying to go in a big company after a small company, Yeah. won't that company think that okay, this person is from small company, she or he doesn't have that experience of handling so many things? No. So I'll tell you. My second interview with Baba, this gentleman asked me कि अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अंदर आपको बैंक को कुछ डेटा सबमिट करना है, बट यू नो इट इज नॉट गोइंग टू सबमिट, व्हाट यू डू? आई सेड आई विल मेक इट। सो दे डिडंट जज मी कि मैं किस कंपनी से आया या किस कंपनी में जा रहा हूं, दे जज मी ऑन माय ओन कैरियर कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ऐसी चीजें होती है क्या, हाउ यू आर। अभी I right now where the company I am working in is very small, but मेरा उल्टा हो गया कि मैं एग्जीक्यूटिव से चालू हुआ, मेरे को बिजनेस हेड बना दिया। I myself don't want to become a business head, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं कहीं और जाऊं इसके आगे तो रेज्यूमे में देखेगा ये तो बिजनेस हेड था, ये तो बहुत कुछ मांगेगा, मेरा वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बट बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट मैनेजमेंट के नीचे मैं हूँ तो मेरे को एक पोजीशन दी दी गई बिजनेस हेड, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग, सो दे आर गिवन मी। बट स्मॉल कंपनी से भी जाओगे, बिग कंपनी में भी जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर, व्हाट यू डू इज गोइंग टू मैटर। आपका माइंडसेट क्या है इज गोइंग टू मैटर। So as you said that you are very good in researching, so what are your ways to do the research? As I told you, मैंने पहले स्टोर जा मतलब हर प्रोजेक्ट पे जा जाके इंफॉर्मेशन गैदर की। करंटली
मेरा अभी जैसे एफएमसीजी में है, एफएमसीजी में देर आर वेरियस क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो पूरा डेटा और इनको सब जमा करके रखते हैं बाय फोन, दैट इज हाउ आई कंक्लूड माय रिसर्च नाउ। बट अगर आपको करना है तो आपको, मेरा जो रिसर्च आता है आज के टाइम पे वो 10,000 प्रोजेक्ट्स आते हैं। आप यहाँ पे 2 दिन लगाइए, आपको यहाँ पे 25 प्रोजेक्ट तो आराम से मिल जाएंगे। तो योर सबसेट इज स्मॉल, it is local. My subset is huge because it's across India. तो छोटा सा रिसर्च स्टार्ट कीजिए, क्या हो जाएगा। मैंने भी छोटा रिसर्च स्टार्ट किया था, जब जाके आज मैं बड़ा डेटा चाहता हूँ। तो वैसा आपके लिए, क्या आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, आप सीखोगे कि इसमें से मैं और क्या क्या निकाल सकता हूँ, एंड देन यू विल मेक योर जर्नी बिगर एंड बिगर एंड बिगर डेटा। So you can do a first semester you did some budget. So how did you contact with those companies? I went to the project. I told them I'm studying in a MBA college, and as a project, I want to perform this. I took a letter from college. This is students from. मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम डेटा बेचने वाले. It is part of your curriculum. So I took a letter from college, and I went to all the projects in this vicinity. I went there. मैं करीब 100 प्रोजेक्ट्स में से गया, उसमें से मेरे को 65 लोगों ने भगा। उन्होंने बहुत प्यार से भगाया कि यार आई डोंट हैव टाइम वगैरह वगैरह, यू हैव टू टॉक टू मैनेजमेंट वगैरह। बट देयर वर पीपल हु वर रेडी, उनको पता था ये डेटा से क्या करें, एमबीए का बच्चा है क्या करेगा वो, आई एम वेयरिंग यूनिफॉर्म गोइंग ऑन अ बाइक, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं और फिर जा रहा हूँ। तो उनको पता था ये डेटा से कुछ नहीं करेगा, ये अपने करिकुलम के लिए यूज करेगा। दैट इज व्हाट आई डिड। मैं तो ऐसे डोर स्टेप हर मतलब हर इसमें जा के किया था। बट देन कॉलेज सपोर्ट, कॉलेज में बोलिए आपको करना है तो जैसे कॉलेज में अपन इंडस्ट्री विजिट करते हैं वैसे बाकी चीजें भी अरेंज कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट आस्क, मतलब यू आस्क फॉर द स्काई, एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसको मिल ही जाएगा। ओके, पीछे वाले को सब दे सामने वाले थोड़े। So you work in real estate, so have you contact of society members to me? That is important. I have societies, so I don't want society members. ऐसा भी एक साथ। So I have contact with society members. Just to answer the question, I have contact with society members. I have my own projects. I have friends who have developed projects, so I know their society. ठीक है, चलो देन आई कंक्लूड। और कोई क्वेश्चन हो? सो दैट्स अबाउट मी। आपको कभी भी कुछ भी लगा तो सर के थ्रू या आई गेस पुष्कर के थ्रू यू कैन पुश क्वेश्चंस टू मी, आई एम देयर टू आंसर एंड आई लव टू कम हियर। आई लव टू यू नो, आज ये किया, इससे पहले हमने एक गेम का इवेंट किया था, टीम बिल्डिंग किया, मैनेजमेंट टीम बिल्डिंग के ऊपर किया। So I keep coming. If I am not called, you can call me and ask me whatever questions you have or whatever. You can solve. Not a problem. सर, आपने जब बारामती के साथ कोलैबोरेट किया था तो पहले प्लांट डेवलप किया था या पहले मेरा प्लांट था ना, मेरा प्लांट था पर प्लांट पे काम नहीं हो रहा था, मेरे को प्लांट वालों को काम देना। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है? मैं मेरे लिए प्रोड्यूस करता था, मैं थोड़ा बहुत और कुछ कोई आता था मेरे को मिर्ची पीस के दे दो, तो हम वो सब करते थे। बट देन आई वांटेड अ स्टडी बिजनेस, दैट्स व्हाई आई वेंट टू बारामती। आई हैड माय ओन प्लांट रेडी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। You opportunity to you students, someone should come forward and give word of thanks. Yes. Good afternoon, Purnima. So as you came here, we don't know anything about it, but as you started and gave us all the information about every part, first of all, I would like to thank you a lot
insights. Sorry, sir. नो प्रॉब्लम इसमें जो तूने जितना भी बोला उसमें से अगर 5% हुआ तो मेरा यहाँ ना सक्सेस हो So 5% is 100% do it. You can have like I got directly. It's you who make it. Thank you a lot, sir. Okay. Any other student? Any other student want to express his own? Yes. A very good evening to one and all. Very good evening, sir. Sir, thank you so much for coming over here and showing us the actual insight of the companies, because here we just think that okay, but whatever it will be, we are supposed to do this. But you actually told us what are we supposed to do and how are we supposed to start. And the other thing till now, whatever gets aimed at actually give us a lot of knowledge. But when we see some young generation coming, we feel that okay, actually this person knows what we actually feel sitting over here. So after that, we all were very, like, we all felt very good and the session was very helpful. Thanks. Firstly, thankful to you on a young bola मेरे को. Thank you for that. And secondly, ये जैसे you were in school, you were scared to go to college. You were in 11th, 12th, you were scared to go to graduation, post graduation. ये हर चीज का डर होता है, but you know तुम्हारा है, तुम्हारा know क्या है. You just keep moving on. That is what वो एक point रह गया था मेरा शायद. क्या? It is वो कोई corporate ऐसा बहुत बड़ा जंगल नहीं है, कुछ नहीं है. We are ready for it. You आज भी तुम जा सकते हो, कल भी तुम जा सकते हो. कल तुम जाओगे तो थोड़ा सा sharpen रहोगे with your skills. आज तुम जाओगे तो तुमको वहां पे थोड़ा slog करना होगा. That's the difference. ठीक है? Anybody want to speak? Any other student? Take these opportunities to come forward and express your views. अभी चाहिए तो अपन Zoom बंद करा के अभी जो बोलना है हाँ. बिना बोल सकते हो, not a problem. मैं वही बोला जैसे बोला, it has to be seen. Student, gents student. मुलांपैकी कोणतरी? हाँ, language is not barrier. Yes. हिंदी Come forward. इंग्लिश गुजराती कोई बाहर से होगा तो और कोई लैंग्वेज सब चलता है. MBA is nothing but communication, as sir has rightly said. Research and communication. ये दो बहुत important है. So can I ask a question? Yes. So what are the skills we need to develop for communication? What are the skills तो मैं नहीं बता पाऊंगा. How you can is very simple. Watch, मतलब यहाँ से आप शाम में 6-7 बजे फ्री हुए हो. You go home, you go to your hostel. You put yourself to the work which you have done. रात में थोड़ा टाइम निकालिए. Read through newspapers. आजकल everything is online. You read through articles, hear through TED Talks, and watch a lot of this sitcoms जो चलते हैं ना, Friends, How I Met Your Mother. I tell you, when I was into graduation, post graduation में की बात नहीं, when I was in graduation, मैं मुंबई में था, and औरंगाबाद, I am from औरंगाबाद, so औरंगाबाद से मुंबई, औरंगाबाद वाला ड्रीम क्या करता है, मैं ग्रेजुएशन पुणे में करूँ, बट मेरे को बॉम्बे का अच्छा पड़ गया, तो मैं बोला चलो बॉम्बे जाते हैं. बॉम्बे जाने के बाद पूना में क्या है, यहाँ पे मिक्स है, हिंदी मराठी में मोस्टली काम चलता है, इंग्लिश कहीं से तो भी एक आधा ग्रीन क्राउड आया था. बॉम्बे में वो नहीं था, बॉम्बे में सिर्फ इंग्लिश. तो पहला जो 6 महीने थे ना, मैं बेंच लास्ट बेंच पे बैठा रहता था, अपना पढ़ते रहता था. फिर मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो फिर यू आर नॉट गिविंग जस्टिस टू योर होल कैलिबर. क्योंकि मेरे को पता था मैं बाकी एक्टिविटीज बहुत करते हैं पहले से, आई वाज स्कूल का प्रेसिडेंट वगैरह. तो यहाँ पे आके रट्टू पुपट तो बन नहीं सकते, तेरे को कुछ करना पड़ेगा. तेरा प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश है, तो तेरी इंग्लिश सुधार. और वो इंग्लिश सुधारने के लिए मैंने हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स, ये सब देखना चालू किया. ट्रेन में ट्रैवल करते थे मुंबई में, तो न्यूज़पेपर पढ़ता था इंग्लिश. टाइम मिलता था तो टेड टॉक वगैरह लेक्चर्स हम सुनते थे. इससे मेरा आई विल से आई हैड अ पर्सनालिटी, बट जो इंग्लिश का था या उस लोकेशन का पर्सनालिटी था मेरा, वो डेवलप नहीं हुआ. तो बिकॉज ऑफ डूइंग वेरियस एक्टिविटीज मेरा डेवलप हुआ. सेकेंड ईयर में आई बिकेम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल. वहां पे मेरे को और अच्छा एक्सपोजर मिला लोगों से.
सो तीन चार चीजें, खुद के ऊपर काम करो और लोगों के बीच में रहो तो तुम्हारा खुद से डेवलप होता है। इस कॉलेज में या पूना में या आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वो जेल नहीं होते। वो जेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको लगता है यार अभी मेरे को बोलते नहीं है, प्रेजेंटेशन देना है, 5 लोगों की कंपलसरी टीम बनी है, प्रेजेंटेशन देना है, 4 लोग पढ़ बोल के चले जाएंगे, वो बेचारा 5वां डरता रहेगा। वो उस डर के मारे ना वो प्रेजेंटेशन पे काम करेगा, ना वो रिसर्च पे काम करेगा, वो कोई चीज पे काम नहीं करेगा। वो ऐसा रहेगा कि बस मेरे को कुछ नहीं करना क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं, मेरा ये स्किल नहीं होने की वजह से मे बी आई विल नॉट बी एबल टू सबमिट, सो दैट इज रॉन्ग। तेरे को आज ही काम करना पड़ेगा सो दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। लास्ट आ जाओ, कम फॉरवर्ड इधर। सर भी लास्ट बेंच पे बैठे थे, वो आगे आ गए। मैं तो लास्ट बेंच से दिखा रहा हूं, बहुत सीधी बात। तो नाम है शुभम मार्कर को बोलता है ग्रेजुएशन का है बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम और हाथ है सोल मानो बनने कुठं कम्युनिकेशन नाही काय रिलॅक्स इथं जितके पण लोक आहेत तुझं 2 वर्ष बसणार आणि 2 वर्षात तुझं डेव्हलपमेंट कसं होणार ते बघ। तर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। सो तो छोटा माइलस्टोन, तो ये जो तू कर रहा है ना रिलैक्स। यहाँ पे अगर तूने कुछ गलत भी बोल दिया तो ना तेरे इंजीनियरिंग के ऊपर तेरे एमबीए के मार्क्स से फर्क पड़ने वाला है तेरे करियर पर। तो यू हैव टू केयर अ डैम फॉर व्हाट others, यू हैव टू बी योर वॉइस। आता कुछ नहीं सर मेरी साइड आइए। कोई भी लगा लो साइड से है ना, ऊपर कुछ मत करो। जो सेकंड साइड के ऊपर से 3 लाइन पर आराम से पलट और आराम से 5 years और get to on my ठीक है सांस अब पहले एक टाइम में बरोबर पहले बार पढ़ा था सेकंड बार पढ़ा वापस ठीक है दिस इज हाउ यू कोई चीज बार बार करते रहो यू विल गेन। आज अगर कोई ये बोल के पीछे बैठा रहेगा कि मैं नहीं कर तो उसमें तुम मत और कोई इधर खड़ा है तो ये तेरे लिए जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए बड़ा तू आया है तो यू हैव टेकन योर कोर्स, बट जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है क्या हाउ कैन आई चेंज। यू हैव टू गेन योर यहाँ पे कोई किसी को जज करे ठीक है। एंड अभी इतना सब इंग्लिश हो गया सीख लिया सब कुछ कर दिया। मैं बॉम्बे में एजुकेशन किया ग्रेजुएशन इधर किया फिर वापस बॉम्बे में जाके 5-6 साल कंपनी में काम किया इस बार के यहाँ पे आके मराठी मेरी मिस हो जाती है लोग देते समझ में। तो things are going to be crazy but you have to just grab it. Okay. Tell something about the session. तुला काय वाटलं? मराठीत बोललं तर काय? हरकत नाही. लहान उद्योग सुरुवात केली त्या गोष्टीपासून तर ते मराठी सांगितलं इंग्लिश मध्ये सांगायचं. तर ट्राय कर. Good morning. Anybody, any student? Yes. Yes. So, as you see from first thing, you have decided Yes. आपको ये फील्ड में जाना है. Yes. But now I am confused that I think that I should go with the trade. अभी 2 साल है अभी देख लेते हैं कि इस फील्ड में क्या करेंगे तो उसके हिसाब से जॉब करेंगे. और
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी उनका माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं एक और एक पोजीशन है और ये इंडस्ट्री और इसी फील्ड में जाना है, तो क्या करना चाहिए? देखो कैसा है, यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। क्या बॉस मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग किधर चल रहा है। मेरे लिए रियल एस्टेट क्यों था पता है? कोई भी चीज 100 करोड़ के नीचे, कोई भी चीज 100 करोड़ के नीचे नहीं होती है, एंड स्काई इज द लिमिट टू दैट। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो मेरे को नंबर्स